الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، حاضرین مجلس اور اس بستی سے اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے مہمانان نظام، عزیز طلباء، آج ہم سب کی یہ جو مجلس ہے اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم بہت معزز، بہت مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کا لگاؤ ہو جاتا ہے وہ چیز معزز اور مکرم بن جاتی ہے۔ جس انسان کا لگاؤ ہو جائے وہ انسان معزز بن جاتا ہے۔ ایک خالی کاغذ کا ایک گتا قرآن کریم کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا ہے، جلد باندھنے کے لیے اس کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کاغذ کے اوپر قرآن کریم کا کوئی حرف لکھا ہوا نہیں، لیکن جلد کے طور پر اس کو جوڑ دیا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تب اسی کاغذ کو انسان اٹھا کر قرآن کریم کو چومتا ہے تو اس گتے کو چومتا ہے، اور جیسے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جو کاغذ لگ گیا ہے، حالانکہ اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں، مگر اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت اونچی کتاب ہے، بہت معزز کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، اسی کتاب نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ عرب کے رہنے والے لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، علم سے خالی، اخلاق سے خالی، بالکل ان کے دل ویران تھے ہر طرح سے، قرآن کریم کے ساتھ جب وہ وابستہ ہونے لگے اور جڑنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے رہبری کا کام لیا اور پوری امت کے امام بن گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المومنین ہیں، مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اپنے ساتھ اپنے فوجیوں کو، صحابہ کرام کی ایک جماعت، مجاہدین کی جماعت، اس کو لے کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں اور درمیان میں جا کر رک گئے۔ اب سارے کے سارے جو ساتھی تھے وہ سب کے سب وہاں پر کھڑے ہیں۔ جب امیر المومنین خود کھڑے ہیں تو سب کھڑے ہو گئے، اور دوپہر کی سخت دھوپ ہے، پسینہ چل رہا ہے، گرمی ہے۔ صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے امیر المومنین کے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں کیوں رک گئے ہو؟ آپ خود بھی پریشان ہیں، پسینہ چل رہا ہے، اتنی گرمی ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ سارے ساتھی جو ساتھ میں ہیں ان سب کو بھی پسینہ بہ رہا ہے، آپ کے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں چلتے چلتے جب یہاں پر پہنچا تو مجھے میرا وہ پرانا زمانہ یاد آیا کہ ایک وہ زمانہ تھا جس وقت میں اسی وادی میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اور چونکہ مجھے اونٹ کو چرانا بھی اچھی طرح نہیں آتا تھا، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، اس لیے جب شام کو گھر جاتا تھا تو میرے ابا خطاب مجھے مارتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ عمر تو کیسے زندگی گزارے گا اور کیسی زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے؟ اور آج کا یہ وقت دیکھ کر وہ زمانہ مجھے یاد آ گیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اور قرآن پاک کے ذریعے سے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آج میں امیر المومنین بنا ہوا ہوں اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ میری اقتدا میں چل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم انسان کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، اس کو پست کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، بہت اونچے مقام پر چلے جاتے ہیں، جن کو قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری یہ مجلس قرآن پاک کی نسبت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، ہم سب کے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے، بہت بڑی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت جا رہی تھی، گزرتے ہوئے انہوں نے سنا کہ یا کوئی آدمی کچھ پڑھ رہا ہے، انہوں نے پڑھا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن عربی میں ہے، وہاں عرب کے لوگ تو سب سمجھتے ہیں۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جنات کہہ رہے ہیں، اور یہ اچھائی کا راستہ دکھا رہا ہے۔
फ़आमन्ना बिह, हम तो इस पर ईमान ले आए। कुरान सुना और फौरन ईमान में दाखिल हो गए। ये वाकई अजीब कुरान है। इस कुरान ने इनकलाब पैदा किया, इंसानों के दिलों को पलट दिया, और ये आया ही पलटने के लिए है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ फरमाए, और इधर उन लोगों की मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए दारुल नदवा में। हरम के पास ही एक जगह थी दारुल नदवा, वहां बैठा करते थे बड़े बड़े लोग, सब बैठकर मशवरा किया करते थे, कोई बात होती थी बात किया करते थे। अबू जहल भी बैठा हुआ है और सुफियान भी बैठे हुए हैं। अबू सुफियान बाद में ईमान ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिशाम बैठे हुए हैं, उतबा इब्न रबिया बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मक्का मुकर्रमा के चौधरी ईमान नहीं लाए हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तकलीफ देने में मशगूल है। बैठ कर कहने लगे कि क्या करना चाहिए। हम लोग जिसकी रोकथाम में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये बंद हो जाए, किसी तरीके से ये रुक जाए, हम तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करना चाहिए? उतबा इब्न रबिया कहने लगा कि देखो, मैं एक बात कहता हूं, मैं उनके पास जाता हूं, अभी बैठे हुए वो बैतुल्लाह शरीफ के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। वो कहने लगा मैं जाता हूं उनके पास और चंद बातें उनके सामने रखता हूं, हो सकता है कि वो मान लें। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मान लें तो हम तो यही चाहते हैं। चुनांचे उतबा इब्न रबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहां जाकर हाजिर हुआ। कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा करें, वैसे शोर तो बहुत करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बखील है वो आदमी जो मेरा नाम सुनकर भी दुरूद शरीफ ना पढ़े, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। 40 नेकियां मिलती हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। रोज सुनते हैं हम फज़ाइल अमाल में, और जमातें जब भी आती हैं हमें सुनाती रहती हैं। खैर, वो आकर कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता हूं, सुनेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनाओ। वो कहने लगा तुम्हारा मकसद इससे क्या है, जिस बात को लेकर तुम उठे हो? हालांकि आप हम सब में बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े अमानतदार हैं, आपका घराना भी बहुत ऊंचा घराना है, बड़े ही खिदमत गुजार हैं, हाजियों की खिदमत करने वाले हैं, सारी खूबियां आपके अंदर हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इस बात की वजह से भाई भाई में दुश्मनी हो गई और आपस में खानदानों का टकराव और खानदानों की दुश्मनियां हो गई। इससे आप क्या चाहते हैं? अगर आप शोहरत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो हम सब मिल करके आपको हमारा अमीर बना देते हैं और हम सब आपकी
बात को मानेंगे, आप जो फैसला करेंगे वो फैसला हम कबूल करेंगे। और अगर आप माल चाहते हो तो हम सारे अरब से चंदा करके माल लाकर इतना जमा कर दें कि दूसरे के पास इतना माल ना हो, सबसे ज्यादा आपके पास ही हो। मुल्क चाहते हो, सरवरी चाहते हो, क्या चीज चाहते हो? खैर, उसने जो बात कहनी थी वो कही। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतबा अब तुम अपनी बात कह चुके? कहने लगा, हाँ मैं तो कह चुका। आपने फरमाया, आप मेरी सुनो। लगा, सुनाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई बात नहीं की, सूरह हामीम सजदा शुरू कर दी। कुरान पाक में जो सूरत है सूरह हामीम सजदा, उन आयतों को आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 2 रुकू के बाद जाकर सजदा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की आयत आई, सजदा फरमाया। सजदे से उठकर आपने फरमाया, उतबा मैंने जो कलाम पढ़ा है सुना? कहने लगा, सुन लिया। बस तो मेरे सामने और कोई तजवीज पेश ना करो, बस जो इसमें कहा गया है मैं इसी का ताबेदार हूं, मैं इसको छोड़कर किसी और बात की तरफ नहीं जा सकता। उतबा वहां से उठा, अपना रुमाल उठाया और चला। वो दारुल नदवा में बैठे हुए हैं, अबू जहल भी बैठे हैं, अबू सुफियान भी बैठे हैं, हिशाम बैठे हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। जब ये गया तो कहने लगे, क्या खबर लेकर आए हो? बात लेकर गए थे ना कि मैं एक जवाब लेकर आता हूं, क्या खबर लाए? उतबा कहने लगा, भाई क्या बताऊं, उन्होंने जो कलाम पेश किया है, इस कलाम में ना तो कोई शहर है ना शेर है। शेर और शायरी का फन भी मैं जानता हूं, जादूगरी का फन भी मुझे आता है। इसमें जादू भी नहीं है, इसमें शेर और शायरी भी नहीं है, इसमें कहानत भी नहीं है। वो लोग सब ये कहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाउज़ बिल्लाह कहा करते थे, काहिन है, कुरान में मौजूद है, साहिर है, जादूगर है, शायर है। उतबा कहने लगा कि इन बातों में से तो कोई बात इस कलाम में तो नहीं है, ये तो एक अजीब ही कलाम है। मैं आपसे ये कहता हूं, ये उतबा कह रहा है जो दुश्मन है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहने लगा, भाई मैं तो ये कहता हूं कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अगर इसने इज्जत हासिल कर ली और गलबा पा लिया तो इसकी इज्जत तुम्हारी ही इज्जत है, ये तुम्हारा ही तो है, इसकी इज्जत तुम्हारी ही इज्जत है। और अगर दूसरे लोगों ने गलबा कर लिया तो फिर तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, ये मगलूब हो जाएगी खुद ब खुद ही। खैर, ये बात कहकर वो खामोश हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, अजीब व गरीब उनके ऊपर असर होता था। एक दिन बैठ करके मशवरा किया कि देखो भाई, कोई आज के बाद में कुरान सुनने के लिए नहीं जाएगा। अगर किसी ने कुरान सुना तो उसके ऊपर जो है जुर्माना होगा, क्योंकि ये कुरान तासीर ऐसी रखता है कि जो सुनेगा वो ईमान कबूल कर लेता है। अब ईमान कबूल कर लिया, पिटाइयां हो रही है मगर नहीं छोड़ रहा है, खाने उधर रही है मगर नहीं छोड़ रहा है। इसलिए ऐसा करो, जुर्माना लगा दो, कोई सुनने के लिए नहीं जाएगा। सीरत में मौजूद है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम रात को उठ करके कुरान पाक पढ़ना शुरू फरमा देते थे। अब अबू सुफियान निकले, अबू जहल निकला। अबू जहल ने सोचा कि भाई मशवरा तो ये किया था कि भाई कोई सुनने नहीं जाए, लेकिन अब सबको चूंकि मना कर दिया इसलिए कोई आएगा नहीं, मैं अकेला जाता हूं और जाकर के सुनूंगा कि क्या इसमें क्या है। अब अबू जहल भी आ गया। रात की तारीकी में अबू सुफियान भी उठकर चले आए। उन्होंने भी यही सोचा कि भाई मैं अकेला ही जा रहा हूं, दूसरे सबको मना किया हुआ है, तो वो भी आ गए। एक और साथी थे इनके, वो भी आए। आकर के सब कुरान को सुनने के लिए अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। अंधेरा है। सुबह हुई और जाने लगे तो रास्ते में मिल गए। कहां गए थे भाई? रात को तो मशवरा किया था, तुम भी वहां गए, तुम भी वहां गए। कहा मैं भी वहीं गया था, मैं भी वहीं गया था। चलो आज के बाद में नहीं जाएंगे, अब आइंदा नहीं जाएंगे। दूसरी रात हुई और दूसरी रात भी इसी तरीके से वो तीनों के तीनों वहां पर रात को सुनने के लिए चले गए। हालांकि दिन को मशवरा करते हैं कि नहीं जाना है। गए। तीसरी रात को भी गए। तीसरी रात को भी गए और सुबह को सबकी मुलाकात हो गई वापस। उनमें से एक साथी कहा चलो भाई आज के बाद में नहीं जाएं। अबू सुफियान के पास गए और उनको जाकर कहा कि चलो हम आइंदा नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो कुरान पढ़ते हैं और हमने सुना है, इसके बारे में तुम्हारा तासुर क्या है? कैसा कलाम है? अबू सुफियान कहने लगे भाई कलाम तो ये अजीब व गरीबी है, ये तो जादूगरी वगैरह तो कुछ नहीं है तो सही। कलाम जो ये है ये उम्दा कलाम है और ये कलाम तो अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, उसके अलावा दूसरा इस तरह कोई कह ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तो मेरा भी यही तासुर है, कुरान वाकई ऐसा ही है। अबू जहल के पास गया, उनको जाकर कहा अबू जहल तुम्हारी क्या राय है इस कलाम के बारे में जिसको हम रात को सुनकर आ गए? कहने लगा कलाम तो ठीक है, जो वो कह रहे हैं बात तो ऐसी है, लेकिन देखो मैं किसी तरीके से इसको मानने वाला नहीं, इसलिए कि हम दोनों खानदानों में आपस में पहले से ये बात चली आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा सखी हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम तुमसे ज्यादा सखी हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए और हम लोग जो है हर मामले में बराबरी का मामला करते आ रहे हैं, मगर अब ये नया ही काम शुरू कर दिया। अब बनो हाशिम तो कहते हैं हमारे अंदर नबी हो गए, पैदा हो गए हैं, अब ये चीज हम कहां से लाएंगे? इसलिए मुझे किसी तरह गवारा नहीं है और इसको तस्लीम नहीं करो। खैर अबू सुफियान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी, फिर बाद में ईमान ले आए, लेकिन ये कलाम ऐसा असर करता है कि लोगों के दिलों को फेर देता है। उतर कर हिरा से सूए कोम आया, शेर है। हिरा से सबसे पहले जब हिरा में कुरान उतरा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये चंद आयतें हैं सबसे पहले वहां उतरी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और वहां लोहे महफूज से लेकर आए, तो वहां से वो कुरान की आयतें लेकर आए। एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। ये नुस्खा कीमिया है। कीमिया एक धात होती है, उसको लोहे के साथ लगाओ तो लोहा सोना बन जाए, किसी भी दूसरी धात के साथ उसको लगाओ तो वो सोना बन जाए। बस ये नुस्खा कुरान करीम का ऐसा ही नुस्खा है, जो भी इसके साथ लग जाएगा बस वो सोने से ऊंचा हो जाएगा।
सोना तो दुनिया की एक कीमती चीज है, जन्नत के अंदर जो चीजें हैं उनके मुकाबले में पूरी दुनिया मिलकर कुछ भी नहीं है। तो कुरान मुकर्रम ये इंसानों को ऊंचा करने वाली किताब है, इंसानों को इज्जत देने वाली किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम सुनने के लिए इरशाद फरमाया। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी और सहाबा के अंदर कारी थे और बड़े खुश इल्हाम थे, अच्छा पढ़ते थे। चुनांचे आप तशरीफ लाए और आपने फरमाया उबई इब्न कअब से कि इब्न कअब कुरान सुनाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कुरान तो आपके ऊपर उतरा है और मैं आपके सामने क्या सुनाऊंगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सुनाओ, अल्लाह का हुक्म है। तो फौरन कहने लगे अल्लाहु सम्मानी, क्या मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने तेरा नाम लेकर कहा है कि उबई इब्न कअब से कहो कुरान पढ़े। ए रसूल तू भी सुन और मैं जो सारी चीजों को पैदा करने वाला हूं मैं भी सुनूंगा। उबई इब्न कअब की आंखों से आंसू जारी हो गए खुशी में। मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है कि कुरान सुना। चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की बहुत ज्यादा तिलावत किया करते थे और बहुत पढ़ते। कुरान के माने ही पढ़ने के हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो पढ़ना छोड़ दे, पढ़े नहीं, फिर वो कुरान का कारी नहीं। ये कुरान फायदा उसी को पहुंचाएगा जो इसको पढ़ता ही रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े होकर के कुरान पढ़ रहे, वर्म आ जाते पैरों में, पैर सूज जाते थे, वर्म आ जाता था, मगर आप पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत की बारिशें होती है जब कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू, जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो कान लगा करके सुनो, खूब ध्यान से उसको सुनो। व अनसितू, और बिल्कुल खामोश रहो। कुरान पढ़ने के टाइम में कोई बात ना करे बीच में। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश हो। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता रहे, सुनने वाले खामोशी के साथ सुनते रहे। अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जे होती है और धुआंधार बरसने शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बहुत अजीम शान किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फरिश्तों ने सुना। फरिश्तों ने कोई किताब पढ़ी नहीं, मगर कुरान करीम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया। हदीस पाक में मौजूद है, रमजानुल मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। ऐसी किताब है। फरिश्ते उतर आते हैं कुरान करीम की तिलावत सुनकर। जब दिल में सोज हो, गुदाज हो, कुरान का ताल्लुक इश्क हो और मोहब्बत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते खींचे चले आते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ करके तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान करीम पढ़ने लगे, आवाज थोड़ी सी तेज हुई, पढ़ते रहे। जो ही आवाज थोड़ी सी तेज हुई, सामने घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा बिदकने लगा, कूदने लगा।
बच्चा सोया हुआ था पास में, तो दिल में सोचा कि ये घोड़ा लगा देगा बच्चे को, तो थोड़ी आवाज को धीमा कर दिया। फिर इश्क को मोहब्बत में रहा नहीं जाता है, फिर कुरान आवाज थोड़ी सी तेज और हो गई, फिर घोड़ा बिदकने लगा, तो फिर आहिस्ता आवाज कर दी। इस तरह 2-3 मरतबा हुआ। फिर आपने नमाज को पूरा किया, सलाम फेरा, ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कुछ रोशनियां मालूम होती हैं जो आसमान की तरफ चढ़ती जा रही। सोचने लगे ये क्या बात है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह, रात को ऐसा ऐसा मामला हुआ, मैं कुरान पढ़ रहा था और इस तरह जो घोड़ा कूदने लगा, मैंने फिर आहिस्ता आवाज की, फिर घोड़ा जो है खामोश हुआ, और फिर थोड़ी देर से आवाज और तेज हो गई, फिर वो इस तरीके से करने लगा, फिर मैंने सलाम फेरा तो कुछ रोशनियां मुझे नजर आई जो आसमान की तरफ जा रही थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए थे। अगर तुम इसी तरह कुरान पढ़ते रहते सुबह तक तो मदीने के सारे लोग फरिश्तों को देख लेते, लेकिन तुमने सलाम फेर दिया पहले, इसलिए फरिश्ते आसमानों पर वापस चले गए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान करीम ऐसी जबरदस्त किताब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसके साथ इश्क और मोहब्बत अता फरमाए, और जो कुरान करीम पढ़े हुए हैं वो बार बार इसको पढ़ते ही रहें, बार बार पढ़ते रहें। साल में 2 मरतबा तो कुरान पाक को मुकम्मल करना, ये तो इसका हक है। हमें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ये तो कम से कम है। बहुत से लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, दीन से दूरी, बेराह रवी, हालांकि कुरान पाक पढ़े हुए हैं, साल गुजर जाता है, बल्कि सालों गुजर जाते हैं, और कुरान का पूरा दौर एक मरतबा भी नहीं निकला। रमजान मुबारक जैसा महीना गुजर जाता है इसी तरह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिर इससे कुरान से दूरी पैदा होती है। अगर कुरान करीम के साथ वाबस्तगी नहीं होगी हमारी और ताल्लुक नहीं होगा तो फिर दूरी पैदा होगी, और फिर दूरी पैदा होते 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 वो दूर होता चला जाता है। जिस तरह वो पढ़ते 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 ऊपर होता चला जाता है, इसी तरह वो न पढ़ने वाला दूरी करते 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 वो दूर होता चला जाता है। इसलिए कुरान करीम को पढ़ें और पढ़ावें, अपनी औलाद को इसी के साथ वाबस्ता करें। सबसे पहले इसी की जरूरत है। दुनिया में सारे काम करें, कोई मना नहीं, कोई नाजायज नहीं, लेकिन सबसे पहले हम कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ें और अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनावें, आलिम बनावें। जैसा कभी बच्चा तकरीर कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहेंगे, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जो हाफिज हिफ्ज करने के बाद पूरी जिंदगी उस कुरान को अपने सीने से लगाए रखा और पढ़ता रहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, पढ़ता जा और चढ़ता जा। जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था, इसी तरह यहां जन्नत में भी ठहर ठहर कर पढ़ता जा। पढ़ते 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 जहां तेरी आखिरी आयत पूरी होगी वही तेरा मकाम और वही तेरा ठिकाना होगा। कैसा ऊंचा कलाम है। उस हाफिज के माँ बाप का यह एहसास है जो अभी बतलाया गया मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने, कि उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। सूरज उसके सामने मात हो जाएगा, कुछ भी नहीं उसकी रोशनी। लोग कहेंगे ये कैसे लोग हैं भाई, जिनके सरों के ऊपर ऐसा ताज पहना दिया
کوئی نبی ہے، کوئی شہیدوں کا مقام ہے، کیا ہے یہ؟ کہنے والے کہیں گے نہ تو یہ نبی ہیں نہ یہ شہداء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے لگایا اور قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو یہ ایسا مقام دیا ہے، عزت کا جوڑا پہنائیں گے اور ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو جب اس حافظ کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو حافظ کا خود کا مقام کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک میں موجود ہے اور سنتے رہتے ہیں، ایک قرآن کریم کا حافظ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہاں حساب کی پیشی ہوگی، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ حافظ 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، 10 آدمیوں کی سفارش کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میں نے تیرا کلام پڑھا ہے، اس لیے 10 آدمیوں کا حق اللہ نے دیا ہے اس کو، وہ 10 دوزخ میں جانے والے ان کو پکڑ پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائے گا، جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو عزیز ہوں گے۔ معمولی بات ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تڑپ رہے ہوں گے لوگ، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کی نہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے۔ اس مقام پر وہ اولاد جس کو آپ نے پڑھایا ہے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے ان کو حافظ کیا ہے، اور پڑھانے والوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھانے کو اور ان کے پڑھنے کو اور ان کے ماں باپ کے یہاں بھیجنے کو سب کو قبول فرمائے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو ایسے حال میں جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہ حافظ 10 آدمیوں کو جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، ان کو پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ تو میرا ہے، میرا عزیز ہے، اس لیے اس نے تعاون کیا میرا، میں اس کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ وہ 10 لوگ کون ہوں گے؟ علماء کرام نے لکھا ہے جس نے اس حافظ کا تعاون کیا ہے، کسی درجے میں تعاون کیا، اس کی ہمت افزائی کی، بیٹا شاباش، بہت اچھی بات ہے کہ تو حفظ پڑھ رہا ہے، محنت کرو، حافظ بنو، کوئی اس کا ہمت افزائی کر کے تعاون کر رہا ہے، کوئی مالی اعتبار سے اس کا تعاون کر رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ ہمت افزائی ہی ہوئی کہ ان بچوں کو اتنا دیا ہے، انعام دیا ہے بستی والوں نے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کے اس انعام کو قبول فرمائے، اس سے ان کی ہمت افزائی ہوتی، اس سے آگے بڑھیں گے کہ اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں انعام تو شروع ہو گئے، آخرت کے انعام تو ہونے ہی ہونے، انعام تو یہیں سے شروع ہو گئے۔ آخری انعام آخرت کا اصل انعام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ہر وقت اس محنت میں لگا رہے۔ تو وہ آدمی جو ان کے تعاون میں شریک ہے، ماں باپ نے محنت کر کے، کوشش کر کے اور ان کو بھیجا ہے، اپنی روکھی سوکھی جس طرح کر رہے ہیں، گزارا اپنا جس طریقے سے کر رہے ہیں، اگر یہ بچہ گھر ہوتا تو کام بٹاتا، لیکن اس کو اس دکھ کو خود اٹھا کر کے بیٹے کو قرآن کے لیے بھیج دیا ہے، ماں نے دکھ اٹھا کر کے اس کو بیٹے کو قرآن کے لیے بھیج دیا ہے اور ترغیب دی ہے، تو ان کے لیے یہ سفارش کرے گا۔ اور جو لوگ رکاوٹ بنیں گے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی پڑوسی ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، کہتے ہیں حافظ بن کر کے کیا کرو گے؟
कॉलेज में पढ़ो ना शानदार, कोई ओहदा मिलेगा, कोई डिग्री मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। हाफिज बनकर के क्या करोगे? तो इस तरह करके हिम्मत को नीचा करते हैं। जो ऐसा कहने वाले होंगे, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार है मगर ये सिफारिश नहीं करेगा। खाली करीबी रिश्तेदार होने से सिफारिश नहीं होगी। सिफारिश उनके लिए होगी जो लोग इनकी हिम्मत अफजाई करें और जो इनको आगे बढ़ाने की फिक्र में लगे रहेंगे, और जो इनकी पस्त हिम्मती कराएंगे और जो लोग रुकावट बनेंगे, उन लोगों के लिए सिफारिश नहीं होगी। तो मेरे अजीजों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुक़द्दस किताब हम सबको अता फरमाई है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लोहे महफूज में महफूज कर रखा है। दुनिया बनने से हजारों साल पहले, दुनिया बनने से 1000 साल पहले किताबों में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान पढ़ी, फरिश्तों ने उसको पढ़ करके कहा वाह 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 वाह, क्या किताब है। अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का एहसान है कि वो किताब हमें दी अल्लाह ने। फरिश्ते कहने लगे कैसे लोग होंगे जिनके ऊपर ये किताब उतरेगी, और कैसी जुबानें होंगी जो इस किताब को पढ़ेगी। कैसे इज्जत वाले लोग होंगे वो, कैसा शानदार कलाम है, ऐसा शानदार। जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में जाने वाले लोग जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में जाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं कुरान पाक में मौजूद। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, कारी साहब ने जो सबसे पहले बच्चे ने तिलावत की थी, घने घने साए होंगे और जन्नत के अंदर पानी के चश्मे होंगे, नहरें चल रही होंगी और सोने के, चांदी के, याकूत के, जमरद के महल बने हुए होंगे। जाफरान की मिट्टी होगी, खुशबू ही खुशबू महक रही होगी, और वो हमेशा हमेश के लिए होगी। खालिदीन फीहा अबदा, फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, खुश हो जाओ। फदखुलूहा खालिदीन, तुम इसमें हमेशा हमेशा चले जाओ, अब इससे निकलने की जरूरत नहीं। तो कोई तुमसे ये नेमत छीनेगा नहीं, कोई डाकू कोई डाका डाल के ले जाएगा नहीं, कोई चोर चोरी करके इसको ले जाएगा नहीं। ये नेमत हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। दुनिया की नेमतें जो दुनिया ने, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, बहरहाल दुनिया की भी जो नेमतें दुनिया की हैं, ये थोड़े से दिनों के लिए हैं, और उनमें भी हर वक्त आदमी को खतरा ही लगा रहता है। हर वक्त कोई चोर चोरी ले जाएगा, कोई डाकू आ जाएगा, और तरह तरह के खतरे लगे रहते हैं। तो आदमी को उसमें लज्जत महसूस नहीं होती, सुकून से खा नहीं सकता, सुकून से पी नहीं सकता, परेशानियां हैं दुनिया में। लेकिन आखिरत की जो नेमतें हैं उनमें लज्जतें ही लज्जतें हैं, सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है, हमेशा का आराम, हमेशा की जवानी, हमें कभी बूढ़ा नहीं होना, हमेशा का हुस्न जमाल, खूबसूरती, कभी वो बदसूरत नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा हमेशा तंदुरुस्त। क्या नेमतें अल्लाह ने दी, हमेशा हमेशा इसी तरह रहेगा। उन नेमतों में आदमी जाएगा जन्नत में, देखेगा वहां के खुद्दाम को, और फरिश्ते लिए फिरते होंगे जाम, तरह तरह के प्याले और जाम, जिसमें शराबन तहूरा, जिसमें दूध है, किसी में कोई शराब तहूरा जो जन्नत में होगी वो ऐसी नहीं होगी जो यहां पर है। उसके अंदर खुशबू महकेगी, खुशबू महकेगी।
دنیا میں انسان طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم دیا ہے ان کو دیکھے، جن سے منع کیا ان سے رک جائے۔ اگر ان سے نہیں رکتا ہے، نوجوان خاص طور پر اس کی طرف جو ہے توجہ دیں، اگر جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے کل محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کا دیدار تو جنت میں ہی ہوگا، تو پھر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر جنت سے محروم ہوگی۔ اس لیے یہ موبائلوں کے ذریعے سے ایسی مباحث ہوئی ہے، اور نوجوان خاص طور پر اس میں ملوث ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے غلط چیزوں کو اس موبائلوں میں مت دیکھو، غلط چیزوں کو اس موبائلوں سے مت سنو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.